वेलकम टू ओनेस्ट स्कूप गाइस। मैं आज यार एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि जितने प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे ICICI बैंक है और कोटक बैंक है, उसमें यार एक बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। कल मैंने एक IMPS किया कल 25,000 का अपने ICICI बैंक से अपने ही कोटक बैंक में। लगभग शाम के 7 बजे की बात थी। मैंने किया उसको IMPS किया, लेकिन वो पैसा मेरे कोटक बैंक में पहुंचा ही नहीं, जबकि ऐड एज अ बेनिफिशियरी वो पहले से ही था और IMPS था। IMPS मीन्स कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए। मैंने वेट किया लगभग 30 मिनट 40 मिनट वेट किया। उसके बाद मैंने चेक किया कि पैसे तो वहाँ पे ICICI से किया था तो वो कट चुके थे। समझ नहीं आया, ICICI चेक किया, कोटक चेक किया, बाकी फिर हार के मैंने बात की ICICI कस्टमर केयर से। उनका फ़ोन नंबर मिलाया। बड़ी अजीब बात थी यार। एक कस्टमर है, उसने 25,000 का ट्रांसफ़र किया है। जब मैंने कॉल किया मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूँ। कॉल किया तो वो बंदा कहने लगा कि सर आपके पैसे कट गए हैं लेकिन वहाँ पे पहुँचे नहीं है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या। Good evening. This is Vinayak, your customer service. How may I help you? Hi Vinayak, this is Kush Mehta. Need to talk about my last transaction. Actually, Sure, I did sir. a transaction to my another account. That's for Okay. that's with Kotak Mahindra Bank, right? I Okay. did an IMPS for 25,000 because it's the last date for my credit card payment. So that's the reason I have transferred the amount to my own bank account with Kotak. But it's been a while, but I haven't received money in my Kotak account. So, sir, as I can check, this transaction got debited from our side. The amount got debited, but this transaction is still in processing. That means the payment gateway is not able to deliver it at the beneficiary's end because they are having some technical issues. Like Who having some your technical issues? your other bank. Your other bank account is currently it is facing some technical issues because of which it is not able to. From ICICI Bank, we were not able to deliver it in time. Okay. So can you So it refund is the still. money back to my account, or what we can do? So Because it, I'm as I'm I not I'm not getting it, because this is the first time I got the issue, and you need to understand right. it's the last date for me to pay my credit card bill, right? So I completely understand, sir. But as of now, sir, since this is on processing, the payment gateway will still try to deliver it within for a maximum of 2 working days. If within two Two working working. days, yes, Oh sir, no, from the date sir. of transaction, that means starting from tomorrow, for the 2 working days, it will Sir, try what to. I'm saying, suppose if I would not have another 25,000 and my last date is today, I did an IMPS, right? If it's Yes, getting sir. failed, you need to get me the money as soon as possible so I can arrange something else so I can pay my credit card bill. Sir, it has not failed yet, sir, because the payment gateway is not able to deliver it. If it's not delivered, it means it's failed. So you should get my money back. Do you understand? Sir, it is automatically You refunded back yourself, to your account. sir, you are saying within 2 working days. Suppose if Right, I sir. don't have another 25,000 and need to pay my urgent bills today, then how I can arrange that 25,000? So I understand, sir, but this does not happen every time it happens. Because I have done the IMPS, right? Right, sir. IMPS means if you do a payment, it will go instant, right? Right, sir. So, But since if there was a technical issue at the other bank's end, sir, sir, give me the our solution. Shall I call them, or what is the solution? Because I need So to see, pay the particular credit card the bill two because it's working Saturday, it's the so last the day. this Sir, what transaction can I'm be saying, if processed. it's not getting processed, I want my money back straight away. That's it. So we won't be able to credit that instantly back That's to your my money, account. That is. right? You have authorized it, right? You did the authorization, right? It's Yes, my sir. money, right? Right, sir. If it's not getting into the next end, if it's like It is roaming around in automatically middle, refunded, sir. Sir, it is automatically refunded when? back to your account, sir. Maximum of 2 working days it takes, sir. Unfortunately, maximum time. that's not good. I request you, sir, please I wait don't for know two. what to do. Exactly, I need to pay a particular amount today, and that's 25,000 is gone. I'm not sure from where I need to get it. Sir, it will
or if you allow me, sir, I'll speak to you. I'll give you the process. I'll help you in the process, sir. As per the process, the beneficiary's bank provides the transaction status within a maximum of 2 working days, and we are yet to receive a confirmation from the beneficiary's bank. We request you to check on the 3rd day in case the amount is not credited. Sir, you are not account. getting my point. I need to pay something today, right? I don't have two days. That's my hard-earned money, right? That's my Sir, money, I right? understand, No sir. one I completely gave me a understand, loan for that, right? Not you, Right, not sir. the other Kotak Bank, right? That's my Right, money. sir. I want to pay through my saving account, right? But Right, sir. you are saying you need to wait for 2 days. अब आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी ICICI बैंक से. सो बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है यार कि अगर 25,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए, अब वो तो मेरे को बेसिकली अर्जेंट था, मेरे को कोटक का मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल था तो वो पे करना था. तो मेरा एक पर्सनल अकाउंट है, तो मैंने वो कोटक में ट्रांसफ़र किए, नहीं मिले. अब वो लास्ट डेट है और आप सुन रहे होंगे रिकॉर्डिंग में कि जो ICICI वाला बंदा है वो कहता है जी 2 दिन तक आपके पैसे हम रिजॉल्व कर देंगे जो ये ट्रांजेक्शन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पता है कि टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, दैट बिटवीन सर्वर्स ऑफ 2 बैंक्स, ठीक है. अब उसमें कस्टमर ने तो अपने 25,000 रुपये डाल दिए, वो नहीं है तो दे सेड कि सर कहीं और से 25,000 अरेंज कर लो और आप वो ट्रांजेक्शन कर लो, मतलब दूसरे किसी और अकाउंट से या इसी अकाउंट से दोबारा 25,000 की ट्रांजेक्शन कर लो. अब मेरा मेन मकसद ये है कि चलो ये भी तो मेरे को क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था जो कि 12 तारीख लास्ट थी. एट द एंड मैंने उसको बहुत बोला कि यार सर अगर आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिच है, प्लीज़ रिफंड मी द मनी राइट अवे, मतलब अभी मेरे को अपना पैसा दे दो, तो उसके बाद मैं कैसे भी करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के और तरीके हैं, आई कैन गो हैड एंड डू दैट. ही सेड कि सर नहीं. मेन क्वेश्चन ये है कि अगर यार किसी व्यक्ति पे 25,000 और हो ही ना, फिर वो क्या करेगा. मैंने बोला कि सर आप रिटर्न में कुछ दे दो, तो बेसिकली दे डोंट हैव द अथॉरिटी कि रिटर्न में कुछ दें. बट स्टिल जब मैंने बार बार बोला तो एक टेक्स्ट मैसेज आया मेरे पास. उस टेक्स्ट मैसेज को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ अभी. अब देखिएगा वो कह रहा है कि 3 दिन के अंदर, वो टेक्स्ट मैसेज साफ कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है वो ही नहीं है, लेकिन 3 दिन के अंदर आपका पैसा आएगा. अगेन सपोज़ अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहीं जगह फंस गया हूँ, मैंने एक ट्रांजेक्शन की और वो जो ट्रांजेक्शन मैंने की और 25,000 मेरे अकाउंट से गए, अब मुझे इंस्टेंटली पे करना है. वो चाहे किसी होटल रूम का हो सकता है या कुछ भी एक ऐसी नेसेसिटी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल में बंदा भर्ती हो सकता है. अगर मुझे वो हैंड टू हैंड पे करना है, बट बैंक ने तो हाथ खड़े कर दिए, टेक्निकली आपका पैसा है बट यू कांट पे. सेम चीज़ मेरे साथ लगभग 15-20 दिन पहले हुई थी. मैंने एक स्कैन कोड किया था, स्कैन कोड से पेमेंट की थी UPI, वो अटक गई थी. वो लगभग 3-4-5 दिन में वापस आई मेरी, लेकिन उसकी बात हम करेंगे बाद में. उसके बाद जब मैंने कहा कि ICICI वाला बंदा कहता है सर देखिए विद इन 2 डेज़, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. और वो बंदा एक बात सही कह रहा था, बिकॉज वो एक एम्प्लॉय है और जो भी लॉज या रूल्स हैं वो उसको ओबे कर रहा है, दैट्स इट. अब फ़ोन कटती है, फिर मैं बात करता हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से, बिकॉज ICICI वाले ने बोला कि सर उस वाले बैंक के सर्वर में कुछ इशू है, बट हमारे यहाँ से पैसे कट चुके हैं और वो वापस नहीं आएंगे 2 दिन तक, या 2 दिन तक का टाइम चाहिए उनको. अब मैं कोटक महिंद्रा बैंक में कॉल कर रहा हूँ, मतलब मैंने कॉल की. जब मैंने कोटक महिंद्रा बैंक में कॉल की तो मैं आपको सुनाता हूँ रिकॉर्डिंग क्या था. गुड इवनिंग मैडम, नीरज है, हिंदी इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ मैं? नीरज भाई, मैं कुश मेहता बोल रहा हूँ. मेरा आपके उसमें अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में. ओके भाई साहब, मैंने अभी ना आपके बैंक में IMPS किया था अपने ही ICICI बैंक से 25,000 रुपये का. ओके IMPS को किए हुए लगभग आधा घंटा 40 मिनट हो गए हैं, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में पहुंचा नहीं. उसके बाद मैंने ICICI वालों को कॉल किया कि क्या हुआ, तो दे सेड कि जी टेक्निकल इशू है कोटक बैंक के अकाउंट, कोटक बैंक में कहीं से. तो हमने कहा टेक्निकल इशू है, चलो ठीक है. अब बात यह है कि मैंने 25,000 क्यों ट्रांसफ़र किया, बिकॉज मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है जिसकी आज लास्ट डेट है और मेरे को वो पे करना है. अब मुझे ट्रांसफ़र किए हुए लगभग आधा पौना घंटा हो चुका है, लेकिन आपके यहाँ पे कोई पैसा पहुँचा नहीं है बिकॉज ऑफ योर टेक्निकल इशू. So please check and fix the issue so I can pay my credit card bill.
श्योर सर। बेसिकली क्या मैं आपको पूरा नाम जान सकता हूँ सर? कुश मेहता। ठीक है, खुशी आपकी कॉल को इधर पे वैलिडेट कराने के लिए धन्यवाद। बताना चाहूँगा अगर देखिए आपका वहाँ से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है, अकाउंट में नहीं पहुँचा है, तो सर इसके रिगार्डिंग आपको जो आईसीआई बैंक है उसके कस्टमर केयर में कॉल करके उस ट्रांजेक्शन का स्टेटस पता करना होगा। भाई साहब उन्होंने ट्रांजेक्शन का स्टेटस बता दिया है, ठीक है, वहां से पैसे कट चुके हैं, वो बोल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में इशू है, ठीक है। ठीक है सर। वो चीज सुने तो सर प्लीज मुझे पूरा सुन ले। कोटक बैंक का जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे भी जब हम जा रहे हैं तो 5 में से 2 बार वो बता रहा है कि टेक्निकल इशू है। राइट नाउ वी आर हैविंग टेक्निकल इशू, सो इट मीन्स कि जो 25,000 है वो आपके टेक्निकल इशू की वजह से बैंक अकाउंट में नहीं आया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज 12 तारीख है, आज मेरे क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट है पेमेंट करने की। वो मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन हमारे पास अभी जो कन्वर्सेशन हमें रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग टेक्निकल इशू की वजह से आप ट्रांजेक्शन करने में डिफिकल्टी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन पैसे लोगों के अकाउंट में आ रहे हैं, उसमें कोई बड़े भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरा नहीं आया, दैट्स द थिंग। मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ। अब मैं अपने दूसरे बैंक से और 25,000 डाल दूंगा वो भी ना आए, फिर और 25,000 डाल दूंगा वो भी ना आए, तो मैं तो अटक गया ना यार। मेरे को तो अपनी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करनी है अभी। ठीक है सर, फिर इसके रिगार्डिंग आपको कॉल का टीम में कनेक्ट करा देता हूँ, आप उन्हें बता दीजिएगा टेक्निकल इशू की वजह से पैसे आपके अकाउंट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली इसके बारे में बता देंगे। कहाँ पे कर रहे हैं आप ट्रांसफर? क्रेडिट कार्ड टीम के साथ में, ठीक है भाई तो जिससे भी कर रहे हैं आप करें, ठीक है। मुझे ये चीज चाहिए सॉर्ट आउट। ठीक है सर, लाइन पे देखिए, कॉल ट्रांसफर करूँ, करेक्ट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकता हूँ, डिस्टेंड मत करिएगा। टेक्निकली जो पहला बंदा था बैंकिंग वाला, ही सेड कि देयर इज़ अ टेक्निकल इशू एंड इट विल बी रिजॉल्व इन 4 आवर्स, बट बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू सेंड मनी टू योर ओन अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन उसके बाद दूसरा बंदा जो क्रेडिट कार्ड वाला था, जब मैंने उसको बोला कि यार मेरी लास्ट डेट है पेमेंट की, मुझे करना है, नहीं तो मेरे को लेट फी लग जाएगी या कुछ और इशू हो जाएगा, आप बताओ तो रिकॉर्डिंग सुने आप। गुड इवनिंग नीतीश, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हैप्पी रेलवे। हाँ भाई साहब कुश मेहता बोल रहा हूँ मैं। अभी आपके बैंक अकाउंट वालों ने आप पे ट्रांसफर किया है। एक्चुअली मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट का लास्ट डेट है अभी, ठीक है। 25,000 मैंने अपने आईसीआईसी बैंक अकाउंट से आपके कोटक नेशनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए, ठीक है। मेरे आईसीआईसी बैंक से तो पैसे कट गए, लेकिन बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक टेक्निकल इशू आपके बैंक मेरे बैंक अकाउंट में जो कोटक का बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। मैंने आईसीआईसी वालों को कॉल किया, ठीक है। उससे पहले आपका जो एप्लीकेशन है, जो कोटक महिंद्रा की एप्लीकेशन है बैंक की, उसमें भी वो दिखा रहा था टेक्निकल इशू, ठीक है जी। लेकिन आईसीआईसी वाले बंदे ने भी साफ बात की कि सर हमारे यहाँ से तो चले गए हैं पैसे, वो बीच में टेक्निकल इशू है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से, इस वजह से वहाँ पे भी रिसीव नहीं हुए हैं, या जो भी है वो कोटक महिंद्रा वाले ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने उनको बोला कि भैया मेरे को आज पेमेंट करनी है 25,000, जो जितने 24,900 समथिंग है, इसलिए मैंने 25,000 ट्रांसफर किया था। तो दे सेड कि भैया कोटक महिंद्रा वाले से बात कर लो, क्योंकि हमारे एंड में तो हम 2 दिन तक का टाइम दे के चलते हैं, ठीक है। सो दैट्स द रीजन आई कॉल्ड यू गाइस। बाकी आपका जो बैंक अकाउंट वाला जो बंदा था वो तो कह रहा कोई टेक्निकल इशू है ही नहीं, या मान गया कि टेक्निकल इशू है, लेकिन पैसे डिलीवर होने में कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को आया, दैट्स द रीजन आई एम कॉलिंग यू गाइस, ठीक है। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा मैं, अभी इस समय ना इशू चल रहा है, 4 घंटे का टैट है, मे भी उनको नहीं पता होगा, 4 घंटे के टैट में वो हो जाएगा। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, आप एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं, कहाँ से करते हैं? एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से करते हैं, निश्चिंत होके आप 4 घंटे बाद या कल तक पेमेंट कर लीजिएगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 15 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आपने रिकॉर्डिंग सुन ली है, अब आप ये बताएं कि पहला बंदा जो था वो कहता है कि सर हम आपको जो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आप कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड वाला बंदा जब वो ट्रांसफ़र करता है तो ही सेड कि सर 4 घंटे की टेक्निकल इशू है, और आई एम श्योर उस बंदे पहले वाले जो बैंकिंग वाला बंदा था उसको नहीं पता होगा। 4 घंटे के लिए जो ट्रांजेक्शन है उसमें कुछ इशू है, नहीं हो पाया। बट स्टिल उस बंदे ने मेरे को एक सोल्यूशन दिया कि सर 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, अगर आप पेमेंट जो है आप अगर लेट करते हैं 3 दिन तक, मतलब 12 की लास्ट डेट थी, अगर आप 15 तक अगर पेमेंट करते हैं तो कोई लेट फी नहीं लगती है। आई सेड फाइन। अगेन मैंने उससे बोला कि यार कुछ मुझे रिटर्न में दो, एटलीस्ट मेरे पास कोई सबूत हो कि देयर इज़ अ टेक्निकल इशू।
प्लस कोटक की जो एप्लीकेशन थी उसमें भी टेक्निकल इशू शो हो रहा था। एट द एंड ही सेड कि वी कांट गिव यू, जिसे कहते हैं आपको कोई रिटर्न नहीं दे सकते, एटलीस्ट बैंकिंग वाला दे सकता है। तो उसने दोबारा मुझे बैंकिंग वाले पे ट्रांसफ़र किया, उसकी रिकॉर्डिंग से नहीं है। गुड इवनिंग, मेरा नाम विशाल, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, बताइए मैं आपकी किस हाँ भाई विशाल भाई, अभी मैंने आपके बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड दोनों से बात की है। जो आपका टेक्निकल इशू चल रहा है 4 घंटे का, जो मुझे इन्फॉर्म हुआ है, उसको मुझे ईमेल कीजिए, जिस वजह से मेरे पैसे आपके पास रिसीव नहीं हो पाए हैं। आपके बंदे इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि टेक्निकल इशू है सर 4 घंटे का। सो वही जो टेक्निकल इशू है उसका मुझे ईमेल कीजिए कि टेक्निकल इशू है हमारी तरफ से 4 घंटे। सर मैं चेक कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से ना कोई मेल नहीं भेज सकते आपको, आउटसाइड हम यहाँ से कोई मेल नहीं भेज सकते। क्यों? जब आपके यहाँ पे हमारे- इशू है ना यार, अगर कोई मेल कस्टमर को नहीं होता ना चार्ज सर। लग जाए किसी चीज़ का, अपने अपना टेक्निकल इशू थोड़ा ना देखते हैं आप। यहाँ से हम वही तो मैं कह रहा हूँ सर, आउटसाइड हम मेल भेज ही नहीं सकते, किसी को भी नहीं भेज सकते। टेक्स्ट मैसेज, कोई भी मैसेज हम यहाँ से कुछ सेंड नहीं कर सकते कस्टमर को, जो हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं बस वही सेंड होता है। अच्छा। अब आपने इस रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि वो बंदा भी मेरे को रिटर्न में कुछ देने के लिए साफ मना कर दिया कि सर रिटर्न में मैं कुछ नहीं दे सकता, कि टेक्निकल इशू है उसकी वजह से आपकी पेमेंट आई नहीं आई, कुछ नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि सपोज़ अगर मेरा कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट हो या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास 25,000, सिर्फ 25,000 ही अकाउंट में, और मैंने आपको दे दिया, अब मेरा बैलेंस हो गया 0। सो 2 से 3 दिन तक मैं क्या करूँगा? मैं लोगों से उधार मांगूंगा, या मैं जो अपनी नेसेसरी चीज़ें कर रहा था उसको स्टॉप कर दूंगा? ये क्वेश्चन सिर्फ उसके लिए है कि चलो आज तो भगवान की दया से मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो मैंने अपना जो करना था पेमेंट वगैरह कर दी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास वही 25,000 हो, या वही 10,000 हो, या वही 5,000 हो, जितना भी आपके ट्रांजेक्शन का अमाउंट था वो हो, और आप तब वो पेमेंट ना कर पाए, आपने तो अपने अकाउंट से कर दी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, ठीक है, जो प्राइवेट बैंक्स जो आपको चार्ज करते हैं, जो कहते हैं 25,000 मिनिमम होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में, उनको पता है कि टेक्निकल ग्लिच है, उनको पता है कि जो ट्रांजेक्शन है वो बाउंस हो गया, लेकिन वो आपको इंस्टेंट पैसा नहीं दे रहे हैं। सो ये जो चीज़ है, इस वीडियो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार एक मैसेज है कि अगर आप पैसे हम लोगों को चार्ज कर रहे हो, वी आर टेक्निकली एडवांस्ड, सो कस्टमर क्यों भुगते? अगर वो किसी इमरजेंसी में है, वो क्या करेगा? बाकी परेशानी जो है वो कस्टमर को ही होती है। इतने सारी, मतलब 2023 है यार, ये 2008 2006 की बातें नहीं है। और हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लीडिंग बैंक जो हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट में लीड कर रहे हैं। बाकी मैं तो बहुत परेशान रहा यार। एट द एंड मैंने मैनेज किया, आई हैव पेड माय क्रेडिट कार्ड ड्यू, बट स्टिल आई एम स्टिल वेटिंग कि मेरी जो पेमेंट है वो है कहाँ। बिकॉज सुबह उठा, मैंने चेक किया तो ना तो ICICI बैंक में वो वापस आए, ना वो कोटक में आए। सो आई वाज लिटिल वरीड कि यार क्या है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय माता दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।